ڈوڈا پولیس طرف 8 ملٹنٹن خلاف NIA کوٹس میں چارج شیٹ داخل سرحد اپارِ پہ ضلع مز ملٹنسی گوڑ برنچ کوشش SSP ڈوڈا اننت ناگس میں کانگریس پارٹی طرف کنونشن سنز کیا لوک پارٹی میں شامل لیڈروں تو ورکروں طرف والیانہ استقبال شمالی کشیر ہندس کپوارس مز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن سنز کیا لوک پارٹی میں شامل لیڈروں تو ورکروں طرف والیانہ استقبال السلام علیکم ناظرین قشر خبر نامہ ہیتھ چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل ڈوڈاس مز یہ پولیس طرف 8 نفرن خلاف NIA کوٹس مز چارج شیٹ داخل کرنا آو تب SSP ڈوڈاہن امہ حوالہ کت کران وونمت زِ یم شخص سرحد اپارِ پہ ضلع مز نوجوان گمراہ کرنچ کوشش کران تو یمن لوکن خلاف یہ چارج شیٹ داخل کرنا آو تتی مزید کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ یتھ دوران پراپرٹی سیز کرنُک تہِ امکان چھُ ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ دۄن ہٕنٛز پراپرٹی چھِ گۄڈے سیز کرنہٕ آمٕژ جی ضلع ڈوڈا کے کل ملا کے کوئی 119 کے قریب جو ملیٹنٹس ہیں جو 90s میں سرحد پار گئے تھے ان کا جو کارروائیاں تھیں وہ شروع ہیں ابھی بھی ان میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو کہ 10-12 کے قریب ہیں جو کہ زیادہ ایکٹیو ہیں وہ وہاں سے ڈرون ڈراپنگ IDs اور ہتھیار وغیرہ سپلائی کرنے کی ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں کوشش کرتے ہیں ایک OGW نیٹ ورک بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے دوارا ضلع ڈوڈا میں جو ملیٹنسی کی ایکٹیویٹیاں ہیں ملیٹنٹس کی ایکٹیویٹیز ان کو وہ بڑھاوا دیتے ہیں اسی سلسلہ میں لاسٹ ایئر ہم نے کچھ OGW کو اٹھایا ان سے ID بھی برآمد ہوئی ہتھیار بھی برآمد ہوئے جس میں پسٹل ہے اور وہ کیش بھی وہاں سے بیچتے ہیں OGWs کو اور ڈرون ڈراپنگ میں بھی یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں تو انہی کے خلاف FIR رجسٹر تھی ان میں سے جو 8 لوگ ہیں یہ LET کے بھی ہیں اور HM کے بھی ہیں اور یہ ٹاپ کمانڈر ہیں وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں یہ سرحد پار سے پاکستان یا پاکستان آکوپائڈ کشمیر سے تھرو ورچوئل موڈ یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں یہاں OGWs کو اور یوتھ کو بھی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر سے جو ملیٹنسی کی کارروائیاں ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم نے انویسٹیگیشن کیا FIR رجسٹر کرنے کے بعد پریاپت ثبوت اکٹھا کرنے کے بعد ہم نے ان کا جو چالان ہے وہ NIA کو ڈوڈا میں پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو آگے کی کارروائی ہوگی جو ایکیوزڈ ہیں ان کے نام جو بھی پراپرٹی وغیرہ ہوگی اس کا بیورا بھی ہم لیں گے اور کورٹ میں سبمٹ کریں گے ہاں یہ موسٹلی جو ہیں اس میں LET اور حزب المجاہدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو ایک LET کا محمد امین ابو خبیب کر کے ٹھاٹھی کا ملیٹنٹ ہے وہ حال ہی میں جو ہمارا UAPA ایکٹ کے شیڈول 4 میں انڈیویجول ٹیررسٹ بھی گھوشت ہوا اور اس کے ساتھ دوسرا ایک حزب المجاہدین کا ٹیررسٹ ہے جس کا نام ارشاد احمد ہے اس کا کوڈ ادریس ہے وہ بھی HM کا ٹاپ کمانڈر ہے اس کو بھی حال ہی میں MHA کے دوارا جو شیڈول 4 ہے UAPA کا اس میں انلسٹڈ کیا گیا ہے انڈیویجول ٹیررسٹ جی ہماری کوشش ہے جو بھی ایکیوزڈ کے نام پراپرٹی ملے گی جن کے خلاف ہم نے چالان کیا ہے ان کی جو پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کرنے کی جو کارروائی ہے پہلے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر ہیں اس کے بعد یہ ان کو پروکلیمیشن کیا جائے گا جیسے حال ہی میں ہم نے پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کیے ہیں یہ بھی ایک تو پروکلیمڈ افینڈر میں ڈکلیئر کیا آتا ہے ان کو بھی پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کر کے ان کی جو آگے کی کارروائی ہے وہ کی جائے جی ہاں جو لوگ جڑے ہوئے تھے انہوں نے ان کے کہنے پہ یہاں جو انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز ہیں یا سبورسو ایکٹیویٹیز کو سر انجام دیا ہے یا ID لائے ہیں کوئی یا ہتھیار لائے ہیں ان کو ہم نے بک کیا ہے اور وہ ابھی جیل میں ہیں ہم نے UAPA کے تحت ان پہ کیس رجسٹر کر کے انویسٹیگیشن کر کے کورٹ میں چالان کیا ہے اور وہ انڈر ٹرائل ہیں اس وقت اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ چلیں گی ان کی بھی ہم جو پراپرٹی ہے اس کا بیورا لیتے ہیں اور ان کی بھی کڑک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہاں آج کی ڈیٹ میں ڈوڈا میں کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے OGW نیٹ ورک جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں سرحد پار سے تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیاں جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں جی ہاں آپ کے دوارا میرا لوگوں سے یہ اپیل رہے گی کہ جو بھی انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز یا جو بھی تھرو ورچوئل موڈ ان کو کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے سرحد پار سے جو بھی یہ ملیٹنٹ گئے ہیں ان کی انفارمیشن ہمیں دیں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے خاص کر میری یوتھ سے اپیل ہے کہ آپ آئیں ہم دیش کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں حصہ لیں پڑھیں آگے کمپٹیٹیو ایگزام دیں جو بھی یہ ورچوئل موڈ پہ یا سوشل میڈیا کے دوارا ان کو کوشش کرتے ہیں کہ پھر سے ملیٹنسی کارروائی میں ملیٹنسی کی جو کارروائی ہے
वो कराने की कोशिश करें, तो उनके ख़िलाफ़ जो भी है आपके पास रिपोर्ट हमें इन्फॉर्मेशन दें। हम उनके ख़िलाफ़ जो लोग यहाँ यूथ को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, OGW नेटवर्क, वो तोड़ेंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे। जी हाँ, डिफरेंट केसेस में हर एक के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर है, और पहले भी वो केस चलान हुए हैं, आज से पहले भी केस चलान हुए, हर एक के ख़िलाफ़ केस है और वो केस चलान हुए हैं। तो जो भी कार्रवाई मुनासिब कानून बनेगी उसकी हम पूरा कार्रवाई वो करेंगे। जो कोर्ट का एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा अब्सकेंडर डिक्लेयर करने के बाद, प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर करने के बाद, हम जो भी है प्रॉपर्टी की असेसमेंट करवा के जो भी हमें मिलेगा उसको हम ज़रूर अटैच करने की। अनंतनागस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ मज पार्टी सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीरस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाल कथन दल दिन आव तच कया सियासी कारकुन अत पार्टी मज शामिल सपद में। यथ दौरान लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना आव। ये जन अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तिम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत सुखसान कम करें, युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। अपना जो हमारा इख्तियार है, जो हमारा वोट है, अगर सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, आप अंदाजा लगाओ अगर हमारी गलतियों से तीसरी टर्म वहां पर आ गई। कंटिन्यू एक आउटरीच प्रोग्राम चलता रहता है, लोगों से तालमेल हम तो पिछले 1 मई से लेकर लगातार आज तक जिले अनंतनाग के अलग अलग एरियाज़ में कहीं पर लोगों ने बुलाया, अपनी बात रखी, कहीं पर हम लोगों ने छोटे मोटे कन्वेंशंस किए। कुल मिलाकर ये है कि आज की सरकार की जो नाक़िस पॉलिसियां हैं उसको लेकर लोग कितने खफा हैं, खासकर महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों चीजें चरम सीमा पर है पूरे मुल्क में और खुसूसन जम्मू कश्मीर में। तो उसको लेकर लोग तैयार बैठे हैं कि चाहे जमहूरी अमल में पहले लोकल बॉडी आए, पंचायत आए, असेंबली आए, पार्लियामेंट आए, उसके लिए वो बदलाव लाने के लिए तैयार बैठे। बीजेपी को हराना ही एक बात नहीं है, बात यह है कि जिस तरह से पिछले 9 सालों से देश मतलब तबाह बर्बाद कर दिया, भाईचारा खत्म कर दिया, महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी, बेरोजगारी का मतलब पूरा हाल बुरा है, और उसके बाद में जो कुछ जरिए आमदनी है वो कुछ लिमिटेड लोगों के जेब में चला जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है। और उस सारी चीज को देखकर जो आपने देखा 26-27 पार्टी जो बहुत ही वाइब्रेंट पार्टीज हैं देश की, रीजनल पार्टीज हो या नेशनल पार्टी कांग्रेस जैसी हो, वो सारे एक संगम के तौर पर इकट्ठे हुए और मुद्दा मकसद है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, जमहूरियत को बहाल करना है, महंगाई को कम करना है, बेरोजगारी को कुछ न कुछ सदबाब करना है। ये आपको देखिए, एक ही रात में फेविकोल से तो जोड़ा नहीं जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक उसूल होता है, अपना एक आइडियोलॉजी होती है। तो एक आइडियोलॉजी को दूसरी आइडियोलॉजी के साथ मर्ज करने में मतलब पहले तो टाइम लगता है, और दूसरी बात मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के लिए क्लियर कट सिग्नल भारत जोड़ो यात्रा में साफ लोगों को दिखाई दिया। जो लोग देश को मजबूत करने के लिए, देश का भाईचारा बनाए रखने के लिए राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में, चाहे वो फर्द है, गांव का है, शहर का है, ब्लॉक लेवल का है, स्टेट लेवल का है, जो भी लोग भारत जोड़ो यात्रा में उस मिशन के साथ चले, उनके साथ यहां चलने में कोई दिक्कत नहीं। शुमाली कशीर कपवारिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तच वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत सुखसान कम करें, युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। ये जन अत मौके पे कया लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपद। यथ दौरान लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना। देश तुम्हारा है, कश्मीरी कोई और नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर
ने गलत कवानीन पास किए हैं। उन गलत कवानीन को रियासत जम्मू कश्मीर की आने वाली असम्बली में एक जमशे कलम हम रिजेक्ट करेंगे, खारिज करेंगे, मुस्तरद करेंगे। ये ब्यूरोक्रेसी की रियासत नहीं है, ये गवर्नरों की रियासत नहीं है। ये बिहार से आया, राजस्थान से आया, यूपी का आया, कोई बंदा उधर से आया, यहाँ कवानीन हमारे लिए बनाएगा, पास करेगा, वो हम कभी तस्लीम ही नहीं करेंगे। यहाँ के कवानीन यहाँ के लोग बनाएंगे, यहाँ के कवानीन यहाँ के असम्बली के नुमाइंदे बनाएंगे, यहाँ के कवानीन यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक बनाए जाएंगे, यहाँ के कवानीन यहाँ के लोगों के मुफादात के मुताबिक बनाए जाएंगे। यहाँ के कवानीन जो हैं ये रियासत जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए बनाएंगे। अगली हुकूमत जो होगी थम्पिंग मेजॉरिटी से स्वीप करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, स्वीप करेंगे। और हम उम्मीद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो इदारा है जो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, जो किसी दोस्त को देखने वाला नहीं है, जो किसी के प्रेशर में नहीं आने वाला है। ये एक आज़ाद इदारा है और इस आज़ाद इदारे से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इंसानी जो फ़ैसला 5 अगस्त 2019 को मरकज़ी सरकार ने लिया और जो उनकी ब्रूट मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, उस ब्रूट मेजॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उन्होंने जो फ़ैसला वहाँ किया, जो कानून पास किया, उसको हमने चैलेंज किया। आज हम पुरुमेद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से और हमने फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हुकूक वापस दिलाएंगे जो हुकूक हमसे छीने गए हों और गलत तरीके से, गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वो हुकूक हमें वापस दिए जाएंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हुकूक बहाल किए जाएंगे हमें, क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो सैकड़ों साल पुराना रियासत जम्मू कश्मीर था। तब हिंदुस्तान भी आज़ाद नहीं था, पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं था, बांग्लादेश भी आज़ाद नहीं था, अफ़गानिस्तान भी आज़ाद नहीं था, श्रीलंका भी आज़ाद नहीं था जब रियासत जम्मू कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी। लेकिन उस आज़ाद रियासत को आज उन्होंने यूटी में तब्दील किया और दो टुकड़ों में तकसीम किया। ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों पर दिल पर लगी है, ये बात, ये उनके दिल पर ये बात लगी हुई है। और ये बात ये जो इन्होंने हमें दिल पे चोट मारी है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये हमारे दिल से नहीं निकलने वाली है कभी। हम डांगरी राजौरी मज ये 1 जनवरी 2 बयबारन कत्ल करना आई तो लवाकिनों तरफ इंसाफ फराहम करने मांग कर लवाकिनों तरफ एहतजाजी धरनस दौरान वन आमुद युद्ध इंतजामिया तरफ मामलस हवाले साफ शुफाफ तहकीकात कर इंसाफ फराहम कर यकीन दिन आव, ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम कि लवाकिन एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। यिल जन यमो लूको तरफ वन आव योताम तिमन इंसाफ फराहम सपद तोताम रोज तिहुद एहतजाज बदस्तूर जारी। कम से कम 8 महीने हो गए मेरे बच्चों को। हमारा क्या ऐलान है क्योंकि हमें सब हमारे मीडिया वाले भी जितने भाई बहन हैं, भाई मेरे बच्चे हैं, उन सब को पता कि 1 जनवरी वाले दिन सब लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे थे और हमारे बच्चों के साथ जो है खूनों की होलियाँ खेली गई थी। लेकिन आज हम पूरे हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनकी फरियादें सुनते सुनते हमें आज 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने तक हमें कुछ भी, आज दिन तक हमारे बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल रहा कि हमारे बच्चों के साथ किसने इतना गुनाह किया था, वो किस गुनाह के कारण हमारे बच्चों को मारा गया है। हमारी कोई फरियाद नहीं, हमारी यही फरियाद है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे सिर्फ हमारे बच्चों का इंसाफ चाहिए। हमारी यही काल है कि जो आने वाला सोमवार है हम मुरादपुर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, वही बैठ जाएंगे, नहीं जाएंगे, बोरी बिस्तर लेके आ रहे हैं। देखो हमने जो मुरादपुर चौक बंद किया था तब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो SSP साहब है वो हमारे पास गए थे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के मालिक DC साहब थे वो भी हमारे पास गए थे। वो यही बोल रहे थे कि 2 दिन के बाद आपको बता देंगे, आप रोड छोड़ दीजिए और आपको बताएंगे। हम उनके ऑफिस में गए तो हमें कुछ भी नहीं उन्होंने बताया, ऐसे हमें टाल मटोल करके घर में भेज दिया। हमारे बच्चे गए हुए हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कहते। हाँ, पूरा हमारा एक डांगरी का हमारा पूरा जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हजोरी का डांगरी कुचमट सभी हमारा साथ दे रहे हैं, स्टेट तक हमारा साथ देने के लिए तैयार है। जब तक हमारे बच्चों का कुछ नहीं बताएंगे तब तक हम IIT बाईपास रोड पटन शहर पर करने सवाल ये मुकामी लूकों तो अवामी नुमाइंदों तरफ मांग करने इंतजामिया तरफ सड़कें शहर पर करने सवाल कदम तुलना आमुत यथ दौरान सड़क पर शदमद सान कम जारी है। जन मुकामी लूकों तो अवामी नुमाइंदों तरफ गुलिस्तान न्यूज़ तो इंतजामियुक शुक्रिया अदा करान वन आव योदवे पटन तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान ताहम वमेद जी सड़क तमीर सपदन सत वात लूकन सठे राहत।
इसे शाहनवाज नाम मेरा। तो आपको पता होगा कि हाल ही में हमने परसाल या ITI बाईपास मनी बाईपास यहाँ पे बनवाया है। तो इसमें से पहले मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ गुलिस्तान न्यूज़ के जिनने वक्तन फ़वक्तन इसकी न्यूज़ बनाई है और आगे लोगों तक पहुँचाई है, एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँचाई है, ताकि इसमें जो खामियाँ थी वो दूर करने के लिए। तो उसके साथ साथ मैं LG गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिनने मतलब हमारी सुनी, हमारी हर दफ़ा हमने इस रोड की बात आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाई कि इस रोड पे ये होना चाहिए मैग्नेटाइजेशन। आज मतलब यहाँ पे R&B, मैं पहले ये RD डिपार्टमेंट कर रहा था, तो हमने आज इसको फिर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ R&B को सौंपा है। तो आज इस पे R&B डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो आज इस पे ये ब्लैक टॉपिंग हो रही है। तो साथ साथ इसमें अभी ये मेटल वगैरह डल रहा है। तो इसके लिए हम ताही दिल से शुक्रगुजार है। हमारे यहाँ SDM साहब पटन वो भी शाना बशाना मेरे साथ यहाँ खड़ा रहा इस रोड को पाई तकमील लाने में। तो आज फिर एक दफ़ा मैं गुलिस्तान न्यूज़ के जिनने हर लम्हे में हमारा साथ दिया इस रोड को आगे पहुँचाने में, और ये रोड आज हुआ। इसके साथ साथ और एक बात मैं कहूँ, ये रोड तो हुआ है, यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोग हैं या कुपवाड़ा के लोग हैं, अगर पटन में जाम हो वो ये रोड चूज़ कर सकते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। और एक रोड इसी के राइट साइड लिया है जो नेशनल हाईवे से लेके निहलपुरा तक मिल रहा है। उसमें केवल हमने 200 मीटर अब करने हैं। मैंने डिपार्टमेंट को लेटर सौंपी है कि वो 200 मीटर करके दे। उसमें से दरवेश बाग के लोग मुझे काफ़ी वेलकम कर रहे हैं। दरवेश बाग के लोग मतलब जिनको पटन कभी कभार मेडिकल की सुविधा की ज़रूरत हो तो वो मतलब तुरंत उसमें पहुँचे 2 मिनट में, केवल 2 मिनट में उसको वहाँ से अगर पटन होके वो आए या निहल ये अपना ये यतीपुरा होके आए तो वहाँ से उनको थोड़ा वो हिली रोड है। तो साथ साथ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोग भी थोड़ा उस पर आए और वो रोड देखे। बाकी जी आपका तहे दिल से एक दफ़ा फिर शुक्रिया। जमपत्रित त्रागपथरी शुपियन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़की हज खस्त हली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन जमपथरी त्रागपथरी तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मंग कर आमज सड़की हज शहर पर कर सवाल गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन बचिन वल मुश्किल दूर करने yin। हमारी रोड है ये कशिश का, आज तक हमने बहुत दफ़ा अपील किया मगर किसी ने आज तक सुना नहीं। हम लोगों की बात जो हमने यहाँ किया सब रोड बन गई, जंगल में बना दिया रोड। जो हमारी रोड है बीच वाली रोड, ये प्राइमरी स्कूल वाली रोड, ये इतना खस्ता हाल है, किसी को चलने फिरने की कोई बात नहीं लगती है। पथरी से 2 रोड आता है त्राग पथरी, मगर एक भी नहीं उनमें ठीक, कुल खस्ता हाल हो गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हमारा अगर बीमार होता है वो डांगी पर उठाकर लेकर यहाँ आते हैं, मगर हमारा कोई सुनता ही नहीं। फिजिकल एजुकेशन कॉलेज गांधरबलस मज ये 5 दोहन हंद स्पोर्ट्स फेस्टिवल साज कर आमुत, तत वोत आज ये अंद ये जन इख्तितामी तकरीब हंदिस मौके पे मुख्तलिफ महकमन हंदो जिम्मेदारों, अवामी नुमाइंदों, आम लूकों अलावा खिलाड़ियों हंद बड़ी तादाद शिरकत कर। महलस दौरान ये मुख्तलिफ खेल मुकाबलन हंद साज कर आव। यथ दौरान खिलाड़ियों तरफ बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर कर आव। तत आज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले खिलाड़ियों मज इनाम तगरन आमद। ये जन गुलिस्तान न्यूज़ हंदिस रिपोर्टर मोहम्मद सलीम वनिस ते अत मौके पे अवार्ड दित हौसला अफजाई करना आये। इख्तितामी तकरीब हंदिस मौके पे ये रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आये। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद यन महलन हंदिस साज कर मकसद ये नौजवान खिलाड़ियों हज सलाहियत बरवई कार अन तत नौजवान पुई मनशियात निश दूर थवनस मज यो प्रोग्रामों सत आसानी वातन। कर्नल सरनार, प्रिंसिपल सैनिक गुलाम हसन साहब शफकत इकबाल को फॉलो करते हुए जो के बीच आइए इन लम्हात को यादगारी बनाते हैं। कॉलेज लेवल स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 सेकंड एडिशन। It was a 5 days. है कि उसका टोन थोड़ा चाहते हैं, जैसे हमारे कश्मीर के बच्चे हम चाहते हैं कि अदर स्टेट्स में भी उनको मौका मिले। स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो हमने कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया था, ये इसका जो इनाग्रेशन था वो डॉक्टर अरुण कुमार मेहता
वर्दी चीफ सेक्रेटरी ऑफ J&K स्टेट ने इसका इनकाद किया, शुरुआत की, इन्होंने इनाग्रेट किया और आज ये फाइनल फंक्शन हो रहा है जिसमें DDC चेयरपर्सन नुज़रत इशफाक जी आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उसके साथ ADDC गांधरबल और चीफ प्लानिंग अफसर, वो काफ़ी डिग्निटरी स्पोर्ट्स लवर्स जो हैं वो आज इस ये फाइनल में तशरीफ आवर हैं। इस टूर्नामेंट में 37 कॉलेजों ने 37 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया और 4 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया और इसमें 5-7 जो डिसिप्लिन हमारे थे जिनमें हमने हैंडबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, इसका अपना खो खो, कबड्डी, टग ऑफ वार, ये सभी और कश्मीरी रुफ हमने फीमेल स्टूडेंट्स को भी बढ़ावा दिया इस फेस्टिवल के अंदर और उसका भी हमने कंपटीशन करवाया। इस इवेंट में कम से कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसका यही मुद्दा था कि हम स्पोर्ट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो स्पोर्ट्स की ओर राग़िब हों और गंदी आदतों से, ड्रग से दूर रहें। तो इस टूर्नामेंट में हमने बच्चों को हर रोज़ रिफ्रेशमेंट दी, आज अच्छे इनामात दिए उनको और जो इनके इंचार्जेस थे उनको भी हमने अच्छी तरह से ट्रीट किया, हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। ग्राउंड फैसिलिटीज़ हमारे पास बहुत अच्छी थी जो हमने इनको प्रोवाइड की और बच्चों ने काफ़ी जोश इस टूर्नामेंट में दिखाया और जो लास्ट ईयर का हमारा फेस्टिवल था उसे आज डबल जो है पार्टिसिपेशन जो है इस फेस्टिवल में हुई और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला नेक्स्ट ईयर का स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा वो भी हम इसी तरह से इससे बढ़ चढ़ के उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करो। रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर कश्मीर सईद शाहनवाज बुखारियन जिले शुपियनुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये जिलस मज ट्रैफिक निजाम साम हनाई तत तिमो तमि साइट हुंद ते दौर कोर्मुत यथ पे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइव टेस्ट ड्राइविंग सेंटर कायम करने यथ दौरान तिमो मुतलिक अफसरन वोन तिम गन अमे हवाले जिले इंतजामिया सत कत करें युत जन तमाम लवाजमात पूरे करने पत काम शुरू करने। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने ARTO साहब का भी जिन्होंने बहुत एफर्ट करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन थी तो उसमें हमारे जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, बोडर साहब हैं, यहाँ के ACR साहब, ये बहुत ही ग्रेशियस रहे। इन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री किया है कि ये 10 से 20 कनाल का जो लैंड है यहाँ DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स के उस साइड में इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए पेपर वर्क हो रहा है तो वो इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जहाँ हमारा फ्यूचर का प्लान है, एक तो हमारा ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ पे और एक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जो है जो शुपियान के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बन जाएगी, जो एक ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट होगा या फिटनेस बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन जो होता है गाड़ियों का जहाँ टेस्ट होता है तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी आ जाएगी इंशाल्लाह अगले वक्तों में। तो नाज़रीन इस वक्त खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल। लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। 6 सितंबर को इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 2 दिवसीय जकार्ता की यात्रा करेंगे PM, आसियान भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। G20 में शामिल होने 7 सितंबर को भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। G20 शिखर सम्मेलन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, 16 दिन लगाएगा चक्कर, 110 दिन में 15 लाख